हाँ, अस्सलाम वालेकुम dear students and respected colleagues. I myself Dr. Farooq Ahmad Sheikh, Assistant Professor in the Department of Mathematics from Government College Women's Navakadam. So, today you people have most welcome in this online lecture series, and the topic which I have to deliver today, that is based on the title, that is countable and uncountable sets. This is for third semester students, and this is the unit number first of their syllabus. So we will start this countable and uncountable sets. Before going on this countable and uncountable sets, so you people should have knowledge about what is meant by the term set. From your class 11th you are dealing with this term set. तो बेटा आप लोग कह रहे हैं कि जो set है it is actually collection of objects, but जो collection होनी चाहिए that must be well defined, isn't it? तो जो सेट है इट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड दैट कलेक्शन मस्ट बी वेल डिफाइंड. इस टर्म से आप लोगों को तो नॉलेज है ही. ऑब्जेक्टिव्स मीन्स सिंपली द एलिमेंट्स एंड कलेक्शन मीन्स वी आर collecting these things sum up. Now question arises, what is meant by this term well defined? Well defined means such type of collection which have some special properties, special type of property, या हम लोग कहेंगे इनका जो कैरेक्टर होगा इस कलेक्शन का दैट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर, सो दैट वी कैन से whether the given collection, whether the given objective belongs to the collection or not. And usually this set is denoted by capital letters like this, capital A, capital B, capital C and so on. And जो इसमें ये objectives होते हैं within the set, these are denoted by lowercase letters or small letters. We can simply say small letters like this, small a, b, c and so on. So beta जो ये set है it is collection of objectives and that collection is well defined. Point number second, you people say that set is usually denoted by uppercase letters means capital letters, और इसमें जो ये objectives होते हैं they are denoted by the lowercase letters or small letters. And usually these objectives of a set are separated by means of commas. By commas. एक और पॉइंट नोट करना, सेट में जो भी हम ऑब्जेक्टिव्स लेते हैं कलेक्शन, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इन सेट्स, नॉट अलाउड इन सेट्स. रिपीटिशन को हम अलाउ नहीं करते हैं किसमें, सेट्स में. एंड दीज ऑब्जेक्टिव्स जो हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ले रहे हैं सेट में, दे आर एनक्लोज्ड बाय टू ब्रेसेस. हम इन एलिमेंट्स को दो ब्रेसेस में एनक्लोज करते हैं. सो एज पर यू पीपल नाउ दिस सेट इज अ collection of objectives and that collection must be well defined. Well defined, you people say that this type of collection has some special property, yeah, some special character, so that we can say whether the given objective is from the collection or not. Point number second, you people say that set is usually denoted by uppercase letters like this, और जो इसमें ये objectives होती है they are denoted by the lowercase letters like this A, B and C, and repetition is not allowed in set. Point number fourth, you people say these elements are enclosed within braces and separated by means of commas. Then we can say if A is any set, then this A is like this, A, E, I, O and U. This collection makes a set. Here A, E, I, O is a collection, and this collection has a special property, as you know these are vowels, and हमने सेट को डिनोट किया कैपिटल लेटर से, इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने डिनोट किया स्मॉल लेटर से, सेपरेट किया कामा से विद इन द टू ब्रेसेस. लास्ट पे एक और पॉइंट याद रखना, दैट ऑर्डर इज इमटेरियल इन सेट. जो भी कलेक्शन होगी ऑब्जेक्टिव्स की, ऑर्डर डज नॉट मैटर्स हियर इन सेट. सो बेटा आप लोगों ने कहा रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इन सेट्स एंड ऑर्डर इज इमटेरियल. आई थिंक you people have read this from your class 11th. Now the point in your syllabus is what is meant by finite and infinite set. Usually we have two types of sets.
टाइप्स ऑफ सेट, अगर हम ब्रॉडर सेंसेस में सेट को टाइप्स लेंगे तो इसके यूजुअली दो टाइप्स है, जो आपके सिलेबस का पहला टॉपिक है, दैट इज फाइनाइट सेट एंड सेकंड वन इज इनफिनाइट सेट. Now question arises, what is meant by finite set? As the title indicates here, finite means a set in which the counting of the numbers ends. Simply हम लोग कहेंगे finite means जिसमें counting of elements end होगी, that set is called finite set. Say the set of English alphabets, आप लोगों ने कहा दिस सेट ए इक्वल टू ए बी सी एंड सो ऑन अप टू जी, तो इसमें आप लोगों ने एलिमेंट्स को काउंट किया एंड आफ्टर काउंटिंग आप लोगों ने कहा कि जो एन ऑफ ए है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, दैट इज 6. दिस मीन्स फाइनाइट सेट यू पीपल से वायर काउंटिंग एंड्स, या आप लोगों ने कहा सिंपली फाइनाइट सेट मीन्स जिसमें हम लोग कार्डिनलिटी डिफाइन कर सकते हैं. कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन विद इन गिवन सेट. जैसे आप लोगों ने यहां पर कहा जो ये गिवन सेट है ना, इसकी जो कार्डिनलिटी है दैट इज 26. नाउ क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज मेंट बाय इनफिनाइट सेट? as the title of the topic indicates, infinite means simple words which is not finite, तो बेटा as per you people आप लोगों ने कहा finite means counting ends, सिंपली हम कहेंगे infinite means in which counting does not ends. जिसमें काउंटिंग एंड नहीं होगी. यहां दूसरा पॉइंट आप लोगों ने कहा कि अगर सेट फाइनाइट है, कार्डिनलिटी इज डिफाइंड, तो हम लोग यहां पर कहेंगे इनफिनाइट सेट मींस द टाइप ऑफ सेट इन विच द कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट कैन नॉट बी डिफाइंड. से अगर हम लोग लेंगे सेट ए एंड दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लाइक दिस 1, 2, 3, सो ऑन, तो बेटा यहां पर जो सेट है ना, इसकी कार्डिनलिटी अगर मैं आप लोगों को पूछूंगा कि नेचुरल नंबर्स कितने हैं, तो यू कांट से बिकॉज the cardinality of the given set is not defined here. This was all about finite and infinite sets. Now you have a knowledge about finite means in which counting ends and infinite means in which counting does not end. या simple words में आप लोगों ने कहा कि जो countable set है इसकी cardinality defined है, और जो uncountable set है इसकी cardinality not defined. तो बेटा this was about finite and infinite set. Now we have actually topic countable and uncountable sets. So before going on this countable and uncountable sets, you should have little bit knowledge about relations and functions. So we will start now. What is meant by the term relation? से बेटा अगर हमारे पास एक सेट है, से इट्स अ फाइनाइट सेट जिसका मैंने थोड़ा आप लोगों को नॉलेज दिया. अगर हमारे पास सेट ए है, आपने कहा सेट ए में एलिमेंट्स है ए कामा बी, तो यू पीपल से सिंपली कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है 2. और दूसरा सेट बेटा आप लोगों ने लिया सेट बी लाइक दिस 1, 2, 3. आप लोगों ने कहा इसकी कार्डिनलिटी डिफाइंड है एंड दैट कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 3. So A and B are two finite sets, and if we take product of these two sets, that is A into B, this term product of two sets, this term is called Cartesian product. Product of two sets is known as Cartesian product. और हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं Cartesian product? This is actually x comma y such that x belongs to A, y belongs to B. So बेटा आप लोगों ने कहा प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, जिस टर्म को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, इट इज एक्चुअली सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स. और इसमें कंडीशन यह है कि जो ऑर्डर पेयर का पहला कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट या एब्सिसा या प्राइमरी कोऑर्डिनेट, दिस बिलोंग्स टू सेट ए, एंड सेकंड कोऑर्डिनेट या सेकेंडरी कोऑर्डिनेट या इसको आप लोग कहते हैं ऑर्डिनेट, दैट बिलोंग्स टू सेट बी. So this A cross B is defined like this x comma y such that x belongs to A and y belongs to B. Now जो हमारा क्वेश्चन है, हमारे पास दिया है बेटा सेट A that is A comma B, और दूसरा सेट दिया है हमारे पास सेट B that is
1 2 3, अगर हमें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा a इंटू बी, दैट इज यहां का पहला एलिमेंट, दैट इज a कामा 1, a कामा 2, a कामा 3 ऑर्डर पेयर्स। a को यहां का जो सेट a का है ना, इसका हर एक एलिमेंट लेना है विद द एलिमेंट ऑफ b। इसके बाद आपने कहा दिस इज सर b कामा 1, b कामा 2, b कामा 3। So sir, this is the product of two sets. What is this product of two sets? It is actually set of order pairs. अब मुझे बताना आप लोग, अगर आपके पास ये है ना a क्रॉस b, आप लोगों ने कहा अगर हम सर इसकी कार्डिनलिटी देखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6, सिंपली आपने कहा कार्डिनलिटी ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ a इनटू कार्डिनलिटी ऑफ b। देखना बेटा, कार्डिनलिटी ऑफ a इज 2, कार्डिनलिटी ऑफ b इज 3 एंड 3 2s आर 6। जब आप लोग देखते हो अपने स्क्रीन पे यहां पर a क्रॉस b, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट इज नोन एज कार्डिनलिटी। सो कार्डिनलिटी ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू 6। हाँ बेटा, अब आपके पास सेट ये है, सेट A और सेट B। आपने कहा सर अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, जैसे भी आप लोग, दिस इज A कामा 1, A कामा 2, A कामा 3, सर B कामा 1, B कामा 2, B कामा 3, इजंट इट? अब बेटा मैंने कोई सेट लिया, उसका नाम मैंने रखा R, एंड दिस R इज लाइक दिस A कामा 1, B कामा 2 एंड B कामा 3। अब बच्चों आप लोग गेस कर लो, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू सेट्स। ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है a क्रॉस b, और आपके पास एक सेट दिया है r, दिस इज लाइक दैट। आपने कहा जो ये r में एलिमेंट्स है ना, a कामा 1, b कामा 2, b कामा 3, सर ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स a कामा 1, b कामा 2 और b कामा 3, दीज आर इन a क्रॉस b। तो आप लोगों ने कहा जो ये r सेट आपने लिया ना, r इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो जो बेटा a क्रॉस b है, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स एंड दैट इज सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। जो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का आप लोगों ने सबसेट लिया, दैट इज R, एनी सबसेट ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नोन एज रिलेशन। तो सिंपल, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म रिलेशन? तो आप लोगों ने कहा रिलेशन इज एक्चुअली सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। यहां पर अब एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, थोड़ा देखना ध्यान से, क्योंकि जो नल सेट है ना, दिस इज टोटली 11th एंड 12th बेस्ड लेक्चर। जो आपके पास ये है ना 5 सेट, जिसको आप लोग कहते हैं नल सेट, ये नल सेट में एक प्रॉपर्टी है, इट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो बेटा यहां पर क्वेश्चन अराइज हो रहा है, आप लोगों ने कहा जो रिलेशन है ना, इट इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो बेटा इसका मतलब जो फाई है ना, ये भी सबसेट होगा a क्रॉस b का। अगर a क्रॉस b का हम कोई भी सबसेट लेंगे, दैट इज कॉल्ड ए रिलेशन। तो इसका मतलब जो ये फाई है, ये भी रिलेशन है, दैट इज व्हाई दिस रिलेशन इज कॉल्ड नॉन रिलेशन। तो बेटा अगर हमारे पास रिलेशन फाई है, दिस रिलेशन इज कॉल्ड नॉन रिलेशन। एक और पॉइंट आप लोगों ने अपने 11th क्लास में सीखा, दैट इज एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो भी सेट है वो अपने आप का सबसेट है। तो बेटा इसका मतलब जो a क्रॉस b है ना, इट इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b, और इस केस में इक्वल है। अगर हम a क्रॉस b का कोई भी सबसेट लेंगे, दैट इज कॉल्ड अ रिलेशन। दिस मींस a क्रॉस b इटसेल्फ भी एक रिलेशन है, एंड इस टाइप की रिलेशन को कहते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन। और जो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसके? रिलेशन के। सपोज यहां पर आपने लिया r, a, b, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स होते हैं रिलेशन के, लाइक दिस a एंड b, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन। और जो बेटा इसके सेकंड कोऑर्डिनेट्स होते हैं, a की इमेज 1, b की इमेज 2, दीज सेकंड कोऑर्डिनेट्स, या b की इमेज 3, दीज आर कॉल्ड इमेजेस। इमेजेस, जो इमेजेस का सेट होता है ना, सेकंड कोऑर्डिनेट, दिस इज कॉल्ड अ रेंज ऑफ रिलेशन। और जो बेटा ये पूरा सेट हमारे पास होता है सेट बी, जैसे आपने कहा R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, दिस सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ रिलेशन। होप you got this whole
what is meant by relation, what is domain, range and codomain of relation. Now we will move on the topic that is called function. हाँ बेटा, तो अब हम रिलेशन के बाद जाएंगे फंक्शंस, या इसको आप लोग मैपिंग ही कहते हैं. दिस इज यूनिट नंबर फर्स्ट ऑफ योर 12th मैथमेटिक्स बुक एंड यूनिट नंबर सेकंड ऑफ योर 11th मैथमेटिक्स बुक. तो होपफुली यू हैव द नॉलेज अबाउट दिस. नाउ बेटा क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि व्हाट इज मेंट बाय फंक्शन, या हम किस चीज को कहते हैं मैपिंग. एज यू आर अवेयर अबाउट दिस रिलेशन, आप लोगों ने कहा कि सर अगर हमारे पास कोई सेट ए है लाइक दिस ए कामा बी, और दूसरा सेट है बी लाइक दिस 1 कामा 2 कामा 3, और सर अगर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट दैट इज ए कामा 1 ए कामा 2 ए कामा 3 बी कामा 1 बी कामा 2 एंड बी कामा 3. अगर सर हम इसका कोई भी सबसेट लेंगे, से आपने लिया आर, आपने कहा आर इसका सबसेट है या नाम रखा R1, दैट इज ए कामा 1 ए कामा 2 ए कामा 3, इजंट इट. आपने कोई लिया R2, आपने कहा R2 इज इक्वल टू सपोज सर ए कामा 1 बी कामा 1. आपने कोई सेट लिया R3, आपने कहा R3 इज ए कामा 1 और सर बी कामा 3. सभी लोग देखना ध्यान से बेटा, जब हम R1 को देखेंगे ना, एवरी एलिमेंट ऑफ R1 इज ए क्रॉस बी, तो आपने कहा सर दिस इज रिलेशन. अगर हम R2 को देखेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ R2 इज इन ए क्रॉस बी, अगेन इट इज रिलेशन. अगर हम R3 को देखेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस R3 इज इन ए क्रॉस बी, तो बेटा ये भी रिलेशन है. दिस वन इज रिलेशन, दिस वन इज रिलेशन, दिस वन इज रिलेशन. लेकिन थोड़ा कंसंट्रेट सभी लोग करना इस पॉइंट पे, R2 पे. आप लोग देखो जो सेट R2 मैंने लिया, जो R2 सेट है ना बेटा, लेकिन ये फंक्शन भी है. थोड़ा इसी पे कंसंट्रेट कर. जो R2 है ना ये फंक्शन है, जो R1 है ना इट इज ओनली रिलेशन. तो बेटा आप लोग जब देखते हैं ना R1 और R2 में क्या चेंज है, आपने कहा कि सर जो R1 है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ R1 इज इन ए क्रॉस बी, नो डाउट, देन इट इज रिलेशन. जो R2 है ना, इसका भी हर एक एलिमेंट किसमें है, ए क्रॉस बी में, तो अगेन इट इज रिलेशन. बट आप लोगों ने कहा जो R2 है ना, बट सर ये फंक्शन है, और जो R1 है इट इज नॉट ए फंक्शन. तो क्वेश्चन अराइज हो रहा है व्हाई such type of relation, जो फंक्शन है ना, इट इज एक्चुअली स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच फर्स्ट कोऑर्डिनेट डज नॉट रिपीट्स, मींस जिसमें आप लोगों ने कहा प्राइमरी कोऑर्डिनेट रिपीट नहीं होगा. यहां देखना, यहां पर प्राइमरी कोऑर्डिनेट ए है, यहां पर प्राइमरी कोऑर्डिनेट बी है. तो आप लोगों ने कहा सर जो हमारे पास अभी रिलेशन है जिसका नाम आपने रखा R2 फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, आपने कहा R2 में अगर एलिमेंट्स है ए और बी, ए का इमेज है 1 और बी की भी इमेज है 1, तो सर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ना इट डज नॉट रिपीट्स. लेकिन जब आपने R1 देखा ना, ए की इमेज क्या है 1, ए की इमेज क्या है 2, ए की इमेज क्या है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट रिपीट हो रहा है. सच टाइप ऑफ रिलेशन जिसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट डज नॉट रिपीट्स, सच टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज फंक्शन. सो बेटा जो हमारा टॉपिक है ना फंक्शन और मैपिंग, आपने कहा इट इज एक्चुअली स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. This means there are certain conditions या restrictions on a relation so that it becomes function. तो आप लोगों ने क्या कहा, अगर हमारे पास एक रिलेशन है जिसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट does not repeat, such type of relation is known as function. Here in R3 you are seeing here is first element A, here is first element B. तो बेटा आप लोगों ने कहा again this one is a function. So we can say like this. तो बेटा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सेट ए है और दूसरा सेट है बी, एफ इज अ रिलेशन गोइंग फ्रॉम ए टू बी लाइक दिस, एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. आपने कहा इसमें एलिमेंट है 1 2 3, यहां पर एलिमेंट है 4 एंड 5, 1 4 के साथ, 2 भी 4 के साथ, 3 भी 5 के साथ. सर जो इस वक्त हमारी रिलेशन एफ है ना, इसमें ऐसा है 1 4 2 4 3 5. जब हमने देखा ना फर्स्ट कोऑर्डिनेट डज नॉट रिपीट, सो इट बिकम्स अ फंक्शन, और हम इसको कहेंगे मैपिंग.
तो बेटा क्लियर। तो आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो फंक्शन है ना फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is said to be a function, a relation which goes from set A to set B is said to be function if every element of this set A has a unique image in set B। हर एक एलिमेंट जो A में होगा ना इसकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए सेट B में, तो हम इसको कहेंगे फंक्शन। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन। नाउ क्वेश्चन अराइज हो रहा है, जो ये है ना 1 2 3 और जो ये 4 एंड 5, जो ये सेट है ना सेट A 1 2 3 these are called set of pre-images, सेट ऑफ प्री इमेजेस। और जो बेटा सेट ये है ना 4 एंड 5 दिस आर कॉल्ड सेट ऑफ इमेजेस। जो ये सेट ऑफ प्री इमेजेस है ना दिस इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन, दिया डोमेन ऑफ फंक्शन। और बेटा जो ये सेट है ना सेट ऑफ इमेजेस दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन, आर है। आर स्टैंड्स फॉर रेंज, डी स्टैंड्स फॉर डोमेन। अगर बेटा बाय द वे मैंने यहां पर कोई एलिमेंट लिया 6, मैंने कोई एलिमेंट लिया, आपने कहा 1 की इमेज है सर 4, 2 की 4, 3 की 5, इज दिस फंक्शन? यस इट इज फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक इमेज इन बी। अगर मैं आपसे पूछूंगा इमेज कौन कौन सी है, आपने कहा 4 और 5, अब बचा 6, तो बेटा ये पूरा सेट है ना सेट बी 4 5 एंड 6 सेट बी दिस इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ फंक्शन। अब मैं आप लोगों के टॉपिक की तरफ आ रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। दिस सेट 4 5 एंड 6 दिस इज कॉल्ड कोडोमेन। अगर मैं लिखूंगा 4 और 5 दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ इमेजेस, दिस इज कॉल्ड रेंज। अगर मैं लिखूंगा 1 2 3 दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ इमेजेस, दिस इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। तो बेटा तीन चीजें मुझे आपसे चाहिए, वन इज डोमेन ऑफ फंक्शन, अनदर वन इज रेंज ऑफ फंक्शन एंड थर्ड वन इज कोडोमेन ऑफ फंक्शन। तो थोड़ा ध्यान से देखना। आप लोगों ने कहा सर हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी लाइक दिस, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए में मैंने एलिमेंट लिया 1 2 3 और बी में एलिमेंट लिया मैंने 4 एंड 5, 1 का 4 के साथ, 2 का भी 4 के साथ, 3 का भी 5 के साथ। तो बेटा आप में से मुझे कोई बता रेंज ऑफ फंक्शन। आप लोगों ने कहा सेट ऑफ इमेजेस दैट इज 4 5। अगर मैं आपसे पूछूंगा कोडोमेन ऑफ फंक्शन, आपने कहा सेट बी कोडोमेन ऑफ फंक्शन दैट इज अगेन 4 5। तो बेटा अगर ये रेंज और कोडोमेन सेम होगा, when range is equal to codomain of function, that means every element of this set B has at least one pre-image in set A, then this function is known as onto function। onto function कहो या दूसरा नाम है इसका बेटा surjective function। तो आप लोगों ने कहा अगर सर कोडोमेन और रेंज सेम होगा then the function is known as onto function। इसके बाद बेटा मैंने यहां पर फंक्शन एक ली से A और B, f is a function from A to B। यहां पर आपने एलिमेंट लिया 1 2 3, यहां पर एलिमेंट लिया 4 5 एंड 6, 1 4 के साथ, 2 5 के साथ, 3 6 के साथ। आप लोगों ने कहा सर इस फंक्शन में अगर हम देखेंगे कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, इट इज onto। लेकिन इस फंक्शन में सर हम लोगों ने एक और चीज देखा, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट A हैज डिफरेंट इमेजेस इन सेट B। That means for all x1 comma x2 belongs to A such that x1 not equal to x2। मैंने दो एलिमेंट लिए हैं सेट A में like this 1 और 2 दोनों डिफरेंट है। आपने कहा this implies इनकी इमेज भी डिफरेंट है, f of x1 is not equal to f of x2। तो बेटा सिंपल वर्ड्स में when different elements of set A has a different image in set B then the function is known as one-one function। वन वन फंक्शन कहो या इंजेक्टिव फंक्शन कहो। इज दिस वन वन? नो। आप लोगों ने कहा क्योंकि सर आपने कहा डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए, यहां पर दो डिफरेंट है 1 और 2 लेकिन इनकी इमेज सेम है 4। दिस इज नॉट वन वन, दिस इज ऑन टू। दिस वन इज सर वन वन भी और ऑन टू भी। अगर बेटा फंक्शन वन वन भी होगी और ऑन टू भी होगा लाइक दिस वन वन एंड ऑन टू, अगर फंक्शन बोथ है 1 1 and on to, this is called bijective function। तो इससे मुझे काम है bijective टर्म से। तो आप लोगों ने कहा bijective मीन्स फंक्शन इज बोथ 1 1 and on to। जितना भी मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ा है ना
it is only for this. So now we will start our topic, that is what is meant by countable and uncountable sets. तो बेटा यहाँ पर सभी लोग देखना, countable set हम किसको कहेंगे, सभी लोग देखना ध्यान से। अगर बेटा हमारे पास एक सेट है A and this set A is finite, अगर ये बेटा फाइनाइट सेट होगा, then nothing to prove, then it is always countable. Case number first, if A is finite, then it is countable. Case number second, if A is equal to phi, that means empty set, null set, again in this case it is countable because जो null set है ना, it is the type of finite set. अब बेटा आप लोगों का क्वेश्चन अराइज हो रहा कि जो A है ना, it is infinite set. सर सेट ए जो है इट इज इनफिनाइट, जैसे आप लोगों को पता है इसकी कार्डिनलिटी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, इसमें काउंटिंग एंड नहीं होती है। अब बेटा जो ए है ना, अगर ये इनफिनाइट सेट है, इनफिनाइट सेट, हम सर एक इनफिनाइट सेट को कब कहेंगे इट इज काउंटेबल? तो बेटा एक इनफिनाइट सेट को हम कहेंगे काउंटेबल तब अगर हमारे पास एक फंक्शन है which goes from set of natural numbers to the given set. अगर बेटा हमारे पास एक मैपिंग है which goes from set of natural numbers to the given set and this mapping is bijective. अगर ये मैपिंग क्या है बेटा, bijective means 1 1 and on to, अगर फंक्शन 1 1 and on to है from set of natural numbers to the given set, then we can say this set is equivalent to set of natural numbers. ये सिंपल है ना, it is for equivalent. हम कहेंगे जो given set है it is equivalent to set of natural numbers and any set which is equivalent to set of natural numbers is known as denumerable set और हम उसको कहते हैं countable set. तो बेटा this is all about countable set. तो क्या कहा आप लोगों ने, if there exists 1 1 and on to means bijective mapping from given set to set of natural numbers, हम लोग कहेंगे जो given set है it is countable set. And if there does not exist any bijective mapping from set of natural numbers to given set, then in such a case we can say the given set is uncountable set. This was all about countable and uncountable sets. तो मैं यहां पर एक एग्जांपल दूंगा तो थोड़ा देखना बेटा। सपोज हमारे पास सेट दिया है ए लाइक दिस 1 1/2 1/3 1/4 1/5 एंड सो ऑन। जब आप लोग देखते हैं तो इसकी काउंट ये कार्डिनलिटी नॉट डिफाइंड, तो आप लोगों ने कहा दिस इज इनफिनाइट सेट। अब हमें चेक करना वेदर दिस इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। आप लोगों ने कहा सर काउंटेबल तब होगा इफ देयर एक्स अ फंक्शन f from n to a and this function must be bijective. सपोज आप लोगों ने कहा देयर इज अ फंक्शन फ्रॉम n to a which is defined like this. आपने कहा f of n is equal to 1/n for all n belongs to n. तो देखना बेटा जब हम n को देंगे 1 वैल्यू तो f of 1 मिलेगा हमें 1/1 दैट इज 1। अगर हम 2 देंगे तो f of 2 मिलेगा हमें 1/2। अगर हम 3 देंगे f of 3 मिलेगा हमें 1/3। अगर हम 4 देंगे 1/4 मिलेगा एंड सो ऑन। तो बेटा आप लोगों ने कहा जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ना n में आप लोगों ने एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और यहां पर जो आपके पास गिवन सेट है a इसमें आपको मिला 1 1/2 1/3 1/4। आपने कहा दिस इज मैप्ड विद दिस इज मैप्ड विद दिस इज दिस एंड दिस इज दिस। हियर the function which is f from n to a, this is both 1 1 and on to, hence we can say set n is equivalent to a and in this case we can say a is a countable set. Thank you. I think it is enough for today.